Yes, ma'am. Sorry. Okay. In the last lecture, we have started the data backup and recovery. Okay, in DBMS, data backup and recovery in DBMS. Okay, storage structure that we have covered in the last lecture. Yes, screen is visible to everyone, na? Students. Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Okay. Storage structure. Okay, volatile memory, non-volatile memory, and stable memory. That is we have covered in the last lecture. What is a stable memory? This is a said to be third form of memory structure, but it is same as non-volatile memory. Okay, in this case, copies of some same non-volatile memories are stored at different places. Okay, stable memory means what is the use of stable memory? Stable memory is same like non-volatile memory. Okay, it is non-volatile memory stable memory, but what we will do, we will keep the copies of same non-volatile memories at the different places so that we can recover in case of failure. Okay, so stable memory, uh, same as non-volatile memory, but what is the difference? We can keep the copies. Okay, we can keep the multiple copies at the different places. Okay, so you have to remember what is stable memory. Data backup. Okay, that we have covered in the last lecture. Primary, how to take the backup of primary memory and how to take the backup of the secondary memory. Okay, primary memory, if you want to keep the backup of the primary memory data, then there are two methods. Like the first is we can create the copy of the primary memory in the database with the logs, files, and buffers, and then periodically we can update that copies. And the second is we can create the checkpoints. Okay, for the primary memory. What is primary memory and what is secondary memory, now you know. Okay, and the second method is for taking the backup for the secondary memory. There are again three methods. The first is remote backup. Okay, we can keep the remote backup. The second is we can create the different copies. Okay, like magnetic tapes and kept at secured place. And the third one is we can create the log files. Okay, now tell me what you have understand in this topic. What you have understand in this topic? Yes, data backup. What is data backup? Yes, I think most of the students have confusion still. What is data backup? Who will tell what is data backup? Recover. Okay, recover data. Yes, but first to before recover data, we have to take the backup of data. Okay, we have to take the backup of the data. अगर हमने backup नहीं लिया है तो we cannot recover the data. Okay, अगर हमने backup नहीं लिया है तो we cannot recover the data. For example, if you have a some notes of your SYIT, okay, class in your desktop है तो C drive है तो जहाँ पे आपने copy करके रखा है. But in case if your hard disk fail हो गया, okay, अगर आपका hard disk fail हो गया, तो how you can recover? आप कैसे उसको recover करोगे? The one option is that if you have mail, you have mail all these documents, अगर आपने mail करके रखा है तो you can recover from that mail. Okay, if you have store all the data in drive में store करके रखा है तो you can recover from that drive. Okay, so these are the different ways. ये अलग अलग ways है कि that through that you can recover your data. Okay, so same things are there for the DBMS. Okay, so if प्राइमरी जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी जो स्टोरेज है, ठीक है, तो स्टूडेंट बेटा 1 मिनट.
Yes, sorry students. Okay, yes. सिद्दीकी cloud storage भी कर सकते हैं मैम. Yes, cloud storage also you can do. Okay, but your drive, your Google Drive is your cloud. The example of the cloud. Okay, in the last year operating system, I told you what is cloud. What is cloud? Cloud is what is the use of cloud? We can store our data. Okay, without storing in our system, we can store on the internet. So in your Google Drive, जो है drive is the example of the cloud. Okay, आपका जो drive आप use करते हो ना कि जहाँ पे आपका data store करे हो, that is the cloud. Okay, it is example of cloud. Drive is the example of cloud. Okay, so you can take the backup on drive also. That is a type of cloud हो गया. ठीक है? Yes. Logical storage drive. Yes. Okay, logical storage drive. आप उसको logical storage you can say. Okay. So there are two types of backup. You can take the two backup. The first of all, you have to take the backup of the primary memory, and the second इसका backup लेना होगा secondary memory का. Okay. So that we have covered in the last lecture. There are again two types of backup: logical backups and physical backups. Okay. So logical backups मतलब your table, views, procedure, functions, related data that you need take the backup. It's called the logical backup. And physical backup मतलब your physical files. Okay, जहाँ पे डेटाबेस आपका इंस्टॉल है या डेटाबेस जो भी फाइल्स जो है, ठीक है, सेटअप फाइल्स जो है, लॉग फाइल्स जो दैट यू विल क्रिएट, वो वाला data files all if you are taking the as a backup, it is called the physical data backup. Okay. Okay, the second is recovery. Now we know there are two types of backup. Okay, the first हम लोग backup ले सकते हैं primary memory का, and second we can take the backup of the secondary memory. Okay, so primary memory मतलब क्या, currently जो हम execute हो रहा है, ठीक है, currently जो execute हो रहा है by the CPU, it is वो data कहाँ से लेगा, वो primary memory में से. तो now zoom and word अभी हमारा कहाँ पे है, primary memory में store है. Okay, when I will close, ये मैं close कर दूंगी zoom and word file, तो वो primary memory में निकल जाएगा. But still zoom and जो मेरा word file है, that is stored in the secondary memory में store है. Okay, so at the time of execution, if you want to take backup, it is called at the primary memory backup. Okay, and okay, secondary memory मतलब C drive है, तो कोई भी drive में आपने hard disk के कोई भी partitions में आपने store किया है, उसका backup लेना है, that is called the secondary backup. Okay, so backup हमने ले लिया. Okay, now recovery. Okay, a database, yes, and log files. What is log file? That I now tell you. Log files मतलब क्या, जो भी आप काम करो, ठीक है, जो भी काम आप करो, that automatically saved by the system. So log files were that we do not need to create ourselves. ठीक है, वो automatically create हो जाएगा. जो Microsoft, जो विंडोज, अभी हम विंडोज यूज करें, ठीक है, विंडोज में आई हैव इंस्टॉल्ड द MySQL. तो MySQL का जो सेटअप है, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिकली लॉग फाइल्स क्रिएट हो रहा है, वो हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो क्रिएट हो रहा है, लॉग फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है. दैट्स व्हाई जो हम डेटाबेस में हमने जो भी काम किया, MySQL में जो भी कमांड्स हमने लिखे, ऑटोमेटिकली वो सेव हो रहा है. सेव हो रहा है कि नहीं? यस, जो हमने MySQL में जो भी टेबल्स बनाए, जो भी डेटाबेसेस बनाए, वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है. ठीक है, वो सेव हो रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉग फाइल्स. ठीक है, वो लॉग फाइल्स ऑटोमेटिकली उसमें है, बट हाँ, हमको बैकअप लेना पड़ेगा. वी हैव टू टेक द बैकअप. लॉग फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सिस्टम्स. ओके, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, वो ऑटोमेटिकली लॉग फाइल्स क्रिएट करेगा. Database is a very used system with lots of data and transaction, as we know. Okay, the transaction in the database executed at each second of time, and it is very critical to database that we already covered in the last lecture. Yes, we left out from this topic in the last lecture. There are three types of failure. The first is transaction failure, the second is system crash, and the third one is disk failure. Okay, three types of failures are possible. What is transaction failure? You know, this is a condition in the transaction where transaction cannot execute it further. This type of failure affects only few tables of process because of net issue. आपका stop हो गया, ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो जो ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन फेलियर. ओके, आप कोई गूगल पे यूज करो, मनी ट्रांसफर करो, बट आपने ट्रांसफर किया, इन बिटवीन आपका नेट इशू है, ठीक है, नेट डिस्कनेक्टेड हो गया, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन फेलियर, कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया. द सेकंड इज सिस्टम क्रैश. The second type of failure is system crash. This can be because of hardware or software failure. Okay, hardware or software failure. For example, Google Pay करियो, okay, बट आपका गूगल पे स्टॉप हो गया, वर्किंग स्टॉप कर दिया, तो गूगल पे का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, वो वर्क नहीं कर रहा है, दैट इज द सॉफ्टवेयर फेलियर. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर फेलियर. और बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक पावर फेलियर, आपका बैटरी चार्ज नहीं, आप ट्रांजैक्शन करो एंड स्विच ऑफ हो गया मोबाइल,
Okay, that is a power failure. In most of these cases data in the secondary memory are not affected. ठीक है, secondary memory में जो data है वो इफेक्ट नहीं होगा. Okay, this is because the database has lots of integrity checkpoints. Okay, to prevent the data loss from the secondary memory. For example, अभी हम MySQL का प्रोग्राम हम लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे थे in the previous lectures में, ठीक है. तो आपने अगर देखा होगा कुछ हमने कोडिंग वगैरह किया, उसमें टेबल्स वी हैव क्रिएटेड, वी हैव परफॉर्म सम क्वेरीज और मुझे एग्जिट करना था. ठीक है, तो मैंने एग्जिट किया, अगेन मैं उसको मैं ओपन कर रही हूँ. ठीक है, तो वो जो मैंने चेंजेस किया था, चेंजेस वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो रहा था. ठीक है, हमने कोई सेव नहीं किया था, मैंने उसमें कमिट वगैरह कुछ लिखा नहीं था, तो भी ऑटोमेटिकली वो सेव हो रहा था. जो भी डेटाबेस मैंने क्रिएट किया, जो भी टेबल्स आई हैव क्रिएटेड, जो भी कॉलम्स मैंने उसमें अपडेट किया, डिलीट किया, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है बिकॉज ऑफ चेक पॉइंट्स, इंटीग्रिटी चेक पॉइंट्स. ओके, वो जो MySQL ने ऑटोमेटिकली चेक पॉइंट्स क्या किया है, क्रिएट किया हुआ है. ओके, द थर्ड वन इज डिस्क फेलर. ओके, डिस्क फेलर. These are the issue with hard disk like formation of bad sectors, disk head crash और unavailability of the disk. Okay, disk आपका आप CPU start करो, आपका CPU start ही नहीं हो रहा है. You will get the error like कि hard disk crash हो गया है. अब या तो कोई भी मतलब due to hard disk you cannot start your system. That is called the disk failure. तो three type of possibility है failure का. Mostly हम लोग जो face कर रहे हैं that is a transaction failure. और ज्यादा से ज्यादा हम लोग सिस्टम क्रैश, ये टू टाइप्स का जनरली हम लोग जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग फेस करते हैं. ठीक है, जनरली ट्रांजैक्शन फेलियर वी हैव फेस एंड ज्यादा से ज्यादा सिस्टम क्रैश. ओके, बाकी डिस्क फेलियर बहुत कम, रेयर केस में डिस्क फेलियर विल बी हैपन. ओके, वन एग्जांपल इज दैट suppose there was a transaction on the student database. Suppose we have created one database, student database हमने create किया है. Okay, there was a transaction, okay, on the student database to enter the marks of student in 3 subjects. Okay, and then to calculate its total. हमने 3 students, हमने जो student है, ठीक है, उसका 3 subjects का मार्क हम लोग एंटर करे, उसका टोटल हम लोगों ने काउंट किया. Suppose there is a transaction failure when third marks has been entered into the table. Okay, फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट मार्क्स डाला, सेकंड सब्जेक्ट का मार्क डाला, व्हेन वी आर एंटरिंग दी थर्ड सब्जेक्ट का मार्क डाले तो कुछ फेलियर हो गया, ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया. दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी लेफ्ट एट दिस स्टेज बिकॉज स्टूडेंट हैज मार्क इन 2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी एंटर. हमने ऑलरेडी 2 स्टूडेंट्स का मार्क डाला हुआ है, थर्ड का जब हम लोग मार्क एंटर कर रहे थे, इंसर्ट क्वेरी हम लोग जब लिख रहे थे, ओके, तो क्या हो गया, ट्रांजैक्शन फेल हो गया. दिस व्हेन दिस सिस्टम इज रिकवर्ड, ओके, जब हम लोग सिस्टम रिकवर करें, जब हम लोग सिस्टम when the system is recovered and total is calculated, it is calculated based on 2 subjects marks, which is not correct. Okay, जब हम उसको रिकवर करेंगे तो क्या होना चाहिए, आइदर हमारा ट्रांजैक्शन का प्रॉपर्टी क्या है, आइदर ट्रांजैक्शन फुल्ली कमिटेड होना चाहिए या तो ओरिजिनल स्टेट में जाना चाहिए. ओके, मतलब फुल्ली परफॉर्म होना चाहिए तो फुल्ली परफॉर्म नहीं होना चाहिए. आइदर 3 सब्जेक्ट्स का टोटल होना चाहिए या तो एक भी टोटल नहीं होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि ओनली 2 सब्जेक्ट का टोटल होके काउंट होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज अगर 2 सब्जेक्ट का टोटल काउंट होके आएगा तो क्या होगा, दैट विल बी एरर. वो एरर मतलब मिस्टेक हो जाएगा, लॉजिकल एरर होगा. ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट. In this case, either the transaction has to be completed fully to enter third marks and calculate the total, or remove the marks that have been entered already. Okay, ये transaction का property है. You know, this is a transaction property. Either completing the transaction fully or revert the transaction fully brings the database into the consistent state and data will not lead to any miscalculations. Okay, so that is an example है. तो at the time हमको recover करना है, तो हम recover कैसे करेंगे? There are 2 methods. We can recover the database into 2 methods. Okay, तो ये जो example है, that is the example of transaction का जो first property है, atomicity. Okay, transaction fully complete होना चाहिए या तो fully abort हो जाना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए. For example, एक table है, student table is that. Okay, we have entered the marks, 3 subjects का mark हम लोग enter करे, first subject का marks enter किया, second subject का marks हम लोग enter करे, जब हम लोग third second का भी enter किया, third का करे तो वहाँ पे कुछ तो transaction fail हो गया, तो we cannot enter the third subjects marks हम लोग enter नहीं कर पा रहा है. तो क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, ट्रांजैक्शन फेल हो गया. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आइदर ट्रांजैक्शन कौन से स्टेट में जाना चाहिए, इनिशियल स्टेट में, क्योंकि एक भी मार्क्स एंटर नहीं होना चाहिए, या तो थर्ड क्या है कि जब मार्क्स हमने एंटर किया था थर्ड वाले का वो पूरा कैलकुलेट होकर टोटल फुल आना चाहिए. तो ट्रांजैक्शन या तो फुल्ली कंप्लीट होना चाहिए तो अबॉर्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये हो रहा है. ठीक है, दिस इज ऑलरेडी हैपन.
इन दी माई एसक्यूएल हम लोगों ने देखा दिस इज डन, ये जो भी है बैकअप या तो जो भी रिकवरी जो है वो डेटाबेस ऑटोमेटिकली कर रहा है। व्हाई? बिकॉज जो माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर जिसने बनाया ये फीचर्स उसने उसमें इंस्टॉल किया हुआ है। लॉग फाइल जो है वो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है बाय द एसक्यूएल सॉफ्टवेयर, जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने भी वो बनाया है एसक्यूएल सॉफ्टवेयर उसने ये फीचर्स उसमें इंस्टॉल किया हुआ है। we can recover the database। हाँ, log files automatically created है, you can see ये मैंने सी ड्राइव में जहाँ पे मेरा एसक्यूएल इंस्टॉल है इन दैट उसमें लॉग फाइल्स आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, लॉग फाइल्स है वो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। वी कैन रिकवर फ्रॉम दिस लॉग फाइल्स। ठीक है, अगर कोई इश्यू आ रहा है तो हम लोग ये जो लॉग फाइल्स है ना, स्लो लॉग है, टाइप्स ऑफ लॉग्स है, तो लॉग फाइल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, हमको लॉग फाइल जनरेट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सिस्टम क्रिएटेड द लॉग फाइल्स। हाँ, बट वी कैन रिकवर फ्रॉम दिस लॉग फाइल्स। ठीक है, ये लॉग फाइल्स हम लोग रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? जहाँ पे आपका मायस्क्यूएल इंस्टॉल है, ठीक है, उसमें डेटा में मायस्क्यूएल में you can find the log files, general log files। ठीक है, तो from this log files you can recover। अब क्या कर सकते हो? रिकवर कर सकते हो। log files automatically generate हो रहा है स्टूडेंट्स। ओके, log files are automatically generated। हाँ, if you want to create your own log files आप नोटपैड में आपका log files create कर सकते हो। I will show you कि कैसे उसको create करना है, but it is already done by the SQL सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उसको आप रिकवर कर सकते हो, और वो कहाँ पे स्टोर होता है? ऑटोमेटिकली क्रिएट होके इन दिस प्रोग्राम फाइल्स में, MySQL में, MySQL server 5.5 डेटा में, MySQL फाइल में यू कैन फाइंड दी लॉग। ओके, लॉग फाइल्स यू कैन फाइंड, तो इसमें से यू कैन रिकवर। क्लियर? सॉरी, we can recover the database in two methods: log based recovery. In this method, log of each transaction is maintained in some stable storage, so that in the case of any failure it can be recovered from there to recover the database। मैंने आपको बताया लॉग फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, तो हम उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं कि इसका जो ये जो लॉग फाइल्स है वो हम वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, वी कैन क्रिएट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस लॉग फाइल्स एंड वी कैन कीप दैट लॉग फाइल्स एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, वो हम कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है लॉग फाइल्स, बट उसको हम लोग एज अ बैकअप हम लोग उसको स्टेबल स्टोरेज मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। एंड देन अगर हमारा डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वी कैन रिकवर। ठीक है, हम लोग ये रिकवर कर सकते हैं। So it can be recovered from that to recover the database, but storing the log should be done before applying the actual transaction on the database। ठीक है, ये log files को हमको क्या करना है? स्टोर करके रखना है। Every log in this case will have information like, अब log file में क्या स्टोर होगा? What will the log file will क्या स्टोर होगा? तो every log file will store the information like what transaction is being executed, which values have been modified to which value, okay, and stage of the transaction। All this information will be stored in log files। log file में क्या स्टोर होगा? जो भी आप डेटाबेस में जो भी चेंजेस करे हो, ठीक है, क्या कौन सा वैल्यू चेंज करे हो, ओके, क्या चेंज करे हो, ओके, एंड स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन, वो चेंज हुआ है कि नहीं। Okay, all information will be stored in the log file। All this log information will be stored in the order of executions। Okay, जो सीक्वेंस में आप एग्जीक्यूशन परफॉर्म करो, पहले इंसर्ट क्वेरी है तो क्या हुआ, अपडेट करे हो तो क्या चेंज हुआ, जो भी क्वेरीज जो आप जो फॉर्म में परफॉर्म करोगे वो फॉर्म में लॉग फाइल जो है वो क्रिएट होगा। Suppose there is a transaction to modify the address of the student, for example update query we are writing। Okay, let us see what logs are written for this transaction। उसको कैसे लिखा जाएगा? As soon as the transaction initiated, the transaction initiate होता है तो first of all क्या होगा? Start log create होगा। Okay, it writes the start log transaction and start log। Yes student, again I am repeating कि ये जो है that is done by the SQL software। Automatically log files create हो रहा है। ठीक है, हम उसको क्रिएट नहीं करें। जैसे हम लोग इंसर्ट क्वेरी लिखा, अपडेट क्वेरी लिखा, क्वेरीज हम लोग परफॉर्म करें, जो भी ट्रांजैक्शन वी हैव परफॉर्म इन ना, ऑटोमेटिकली दैट आर stored in the log files by the system। SQL सर्वर जो ऑटोमेटिकली उसको स्टोर करे। तो कैसे स्टोर होता है वो सिस्टम में? लाइक दिस, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट हुआ, इनिशिएट किया, तो क्या होगा? ट्रांजैक्शन का जो भी आईडी जो स्टोर करा है वो एंड स्टार्ट। व्हेन द ट्रांजैक्शन मॉडिफाई द एड्रेस, फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन हम लोग अपडेट क्वेरी लिख रहे हैं, ओके, ट्रांजैक्शन मतलब क्या? क्वेरीज हम लोग डिफरेंट क्वेरीज वी आर परफॉर्मिंग। तो फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग इन अपडेट क्वेरी, ओके, हमने उसको चेंज किया, स्टूडेंट का एड्रेस चेंज किया फ्रॉम ट्रॉय टू फ्रेशर टाउन। ठीक है, एड्रेस चेंज करे तो अनदर लॉग इज रिटर्न टू द फाइल। तो सेकंड, ये हमने क्वेरीज लिखा तो सेकंड क्वेरीज के लिए सेकंड लॉग फाइल क्रिएट होगा। कैसे होगा? tn मतलब ट्रांजैक्शन आईडी, एड्रेस, कॉलम नेम, ओके, कॉलम का नेम, देन
उसका जो भी चेंजेस करा है कि न्यू से पूरा पहले ट्रॉय था, अब उसने फ्रेशर टाउन कर दिया, तो ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू, कॉलम्स कौन से कॉलम्स में है वो, एंड ट्रांजैक्शन आईडी। ओके, तो this for every queries के लिए, every transaction की log file will be created. Okay, when the transaction is completed, it writes the another log to indicate end of the transaction. क्या हो जाएगा, tn commit. Okay, this is done by the SQL soft, automatically logs file create हो रहा है। ठीक है, you can see here, हमने यहाँ पे log files create नहीं किया था, automatically log files create हो रहा है। ठीक है, there are two methods of creating these log files and updating the database. Okay, there are two methods of creating these log files. तो log files जो है वो ऐसे उसमें ऐसे store होगा। ठीक है, two methods of creating these log files and updating the database. The first is default database modification. Okay, there are two methods of creating these log files. Two methods of creating log files and updating the database. The first is default database modification. In this method, all the logs for the transaction is created. Okay, all the logs for the transaction is created and stored into stable storage system first. Okay, and stored कहाँ पे store होगा, into the stable storage system first. Once it is stored, the database is updated with the changes. Okay, in the above example, ये जो example देखा, after all three logs recorded are created and stored in the some storage system, database will be updated with those steps. Okay, and the second जो है, that is immediate database modification. Okay, immediate database modification. After creating each log records, database is modified for each step of log entry immediately. Okay, in above example, database is modified each step of log entry. Every log के बाद database में modify changes किया जाएगा. Okay, after first log entry, transaction will hit the database to fetch the records. Then second log will be entered, followed by the updating the database. Then third, okay, जैसे ऐसे queries लिखोगे, पर्टिकुलर क्वेरीज के लिए डेटाबेस क्या होगा, डेटाबेस में सेव होगा। ओके, तो सी स्टूडेंट्स, दिस इज थियरी, सब थियरी कंसेप्ट है पूरा। ओके, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, एंड ट्राई टू रिमेम्बर। आई नो कि आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है एंड ऊपर से जा रहा है, बट वी हैव टू लर्न ना। ओके, एज अ आईटी स्टूडेंट वी शुड नो कि व्हाट इज लॉग फाइल, लॉग फाइल में कैसे क्या स्टोर हो रहा है। ओके, भले वो सिस्टम उसको क्रिएट करे, दिस लॉग फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली, बट हमको पता होना चाहिए कि ये लॉग फाइल्स जैसा कुछ है, उसमें कुछ तो स्टोर हो रहा है। वी शुड फैमिलियर विद ऑल दिस टर्म्स, लॉग फाइल्स वगैरह। ठीक है, यस। नाउ ये जो लॉग फाइल्स उन्होंने बताया, ठीक है, जो दैट इज वन बाय वन क्वेरीज के लिए ट्रांजैक्शन, मतलब एक के बाद सेकंड क्वेरी, सेकंड के बाद थर्ड क्वेरी, मतलब वन बाय वन सीक्वेंस ट्रांजैक्शन के लिए। बट व्हाट अबाउट कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन? ओके, रिकवरी विद द कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, आई विल प्रोवाइड दिस नोट स्टूडेंट्स। ओके, रीड करो, जस्ट उसको याद रखो जो है। ठीक है, मैं जो भी उसमें लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, यू हैव टू रीड वंस, आपको उसको रीड करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जो कमांड्स थे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको तुरंत समझ में आ गया कि यस, इंसर्ट करने से ये हो रहा है, अपडेट करने से हो रहा है, बट फॉर दिस यू हैव टू रीड। ठीक है, आपको उसको रीड करना है, रीड करोगे तो समझ में आएगा, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में किया। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रीड करना पड़ रहा था, देन यू हैव रिमेंबर। तो इसमें वैसे ही आपको पहले रीड करना है। मैं एक्सप्लेन करूँ, आपको अभी समझ में आएगा, बट आपको याद नहीं होगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। आई विल प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी क्लास में, प्लीज उसको रीड करो। एज अ जो जैसे स्टोरी रीड करते ना, वैसे उसको जस्ट रीड करो, ऐसे टेंशन लेके मत रीड करो कि ये क्या है। जस्ट जैसे रीड करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, बट उसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा। ओके, यस, and yes, one more method is there. Sorry, I have skipped this. Okay, shadow paging. Okay, this is a method where all the transactions are executed in the primary memory. Once all the transaction completely executed, it will be updated to the database. So that is a shadow paging. मतलब क्या, मेमोरी में सारा एग्जीक्यूट होने के बाद, सारा क्वेरीज जो भी है एग्जीक्यूट होने के बाद, देन डेटाबेस में अपडेट होगा। दैट इज द शेडो पेजिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सारी चीजें हम लोग नहीं करेंगे, दिस इज डन बाय द एसक्यूएल सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली। ठीक है, बट ऐसे होता है। ओके, हाउ टू बैकअप, हाउ टू वो लॉग फाइल्स कैसे क्रिएट कराए, तो लाइक दिस। ओके, द अबाउ टू मेथड्स होल्ड good if there is a single transaction like updating the address also, but what will be happen when there are multiple transactions which occur concurrently? Okay,
एक अगर हमने एक अपडेट क्वेरी लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, फर्स्ट इंसर्ट करे, वन बाय वन हम लोग करें तो ठीक है, these methods we can use, ये लॉग फाइल्स हम लोग यूज कर सकते हैं वन बाय वन के लिए, ठीक है। पहले स्टार्ट हुआ तो लॉग फाइल में ये हुआ, देन हमने कुछ चेंजेस किया तो दिस विल बी क्रिएटेड, एंड किया तो दिस विल बी क्रिएटेड इन द लॉग फाइल्स। बट व्हाट विल बी हैपन व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शन परफॉर्म, मल्टीपल ट्रांजैक्शन परफॉर्म जब हम लोग करते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कैसे लॉग, कैसे हम लोग मतलब सिस्टम, हम मतलब सिस्टम कैसे उसको स्टोर करके रखता है। बट व्हाट हैपन व्हेन देयर आर मल्टीपल ट्रांजैक्शन विल अकर कॉन्करेंटली, the same method of logging the logs can be followed, but since there are concurrent transaction, order and time of each transaction makes a great difference. Okay, हम लोग सिस्टम जो है वो लॉग फाइल से क्रिएट करेगा, ओके सिस्टम जो है वो लॉग फाइल से क्रिएट करेगा, बट मल्टीपल ट्रांजैक्शन में वो क्या करेगा, डेट एंड टाइम्स, ओके कौन से टाइम पे कौन से ऑर्डर में ट्रांजैक्शन आ रहा है, दैट विल बी नोट डाउन। Failing to maintain the order of transaction will lead to wrong data while recovery. ओके अगर रॉन्ग टाइमिंग उसमें लॉग फाइल में सेव हो रहा है तो जब हम लोग सपोज रिकवर करेंगे तो हमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऑल्सो ट्रांजैक्शन में हैव नंबर ऑफ स्टेप्स, मेंटेनिंग द लॉग फॉर ईच स्टेप विल इंक्रीज द लॉग फाइल साइज। ओके अगर हम लोग लॉग फाइल यूज करें मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ हो रहा है तो ऑब्वियसली मल्टीपल क्वेरीज फायर होगा, मल्टीपल क्वेरीज फायर होगा तो उसका जो इन्फॉर्मेशन लॉग फाइल में स्टोर करना है, कौन से टाइम पे कभी ट्रांजैक्शन आ रहा है, कौन सा फर्स्ट आया, कौन सा सेकंड आया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लॉग फाइल में स्टोर करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड। ओके तो उसके लिए उन्होंने एक क्रिएट किया है, मतलब एक है चेक पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स थ्रू यू कैन store your data into the files. Okay, so log files you can use, but these problems will be occur. Okay, so our goal here should be small log files with easy recovery of data in case of failure. So to handle this situation, checkpoints are introduced during the transaction. Okay, checkpoints introduce किया जाता है. The checkpoints act like a bookmark. What is checkpoint? Checkpoints मतलब bookmark. What is the bookmark? What is bookmark? बुकमार्क क्या है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज बुकमार्क स्टूडेंट्स? व्हाट इज बुकमार्क? हैव यू यूज्ड बुकमार्क? आर यू यूजिंग द बुकमार्क? बुकमार्क यूज करते हो आप? आप लोग बुकमार्क यूज करते हो, यस और नो? यस यस हाँ, टू टैग सम इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स, ओके यस ये आप हाँ यूज करते हो। ओके देन जब आप बुक्स, अगर जनरल एग्जांपल दूं, ठीक है, तो आप जब बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, तो वो बुक्स पढ़, सम एग्जांपल आपने वो बुक पढ़ना स्टार्ट किया, ओके तो 10 पेजेस पढ़ लिया, तो आप अभी उसको रख, उसको आप नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, आप बुक मार्क यू विल पुट, ठीक है, यू विल पुट दी बुक मार्क, वहाँ पे कुछ तो आप रख देते हो कि यस अब मुझे नेक्स्ट से ये पढ़ना है, तो आप कोई थ्रेड हुए वो उसमें आता है, या तो फिर आप बुक मार्क बना के उसमें रख देते हो कि रिमेम्बर के नेक्स्ट टाइम जब बुक लोगे तो वहां से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, या तो वो पेज को थोड़ा सा साइड से फोल्ड करके आप रखते हो कि नहीं आपको नेक्स्ट टाइम याद होना चाहिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, तो दैट इज अ बुक मार्क। ओके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक मार्क। ओके तो चेक पॉइंट है वो बुक मार्क जैसा ही है, सेम कि हम लोग क्या करेंगे आफ्टर ट्रांजैक्शन, सपोज मल्टीपल ट्रांजैक्शन है तो आफ्टर 50 ट्रांजैक्शन, तो आफ्टर 10 ट्रांजैक्शन हम क्या करेंगे, वहां से उसका हम लोग लॉग फाइल्स में उसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन such checkpoints are marked and transaction is executed. Okay, the log files will be created as usual with the steps of transaction. log files ही create होगा, but पहले 10 क्वेरीज देन 10 क्वेरीज देन 10 क्वेरीज, तो हर एक 10 क्वेरीज के बाद या तो फिर जितना हमने सेट किया होगा उतना क्वेरीज हम लोग क्या करते जाएंगे, लॉग फाइल्स में एक साथ स्टोर करते जाएंगे। व्हेन इट रीचेस द चेक पॉइंट, ठीक है, द ट्रांजैक्शन विल बी अपडेटेड इनटू द डेटाबेस। Okay, when it reaches the checkpoint, the transaction will be updated in database and all the logs till that point will be removed from that file. Okay, मतलब ऊपर क्या था, हमने हर एक क्वेरीज के लिए लॉग्स क्रिएट किया, ठीक है, हर एक क्वेरीज के लिए, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, हर एक क्वेरीज के लिए करने जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा, उन्होंने क्या किया, एक बुकमार्क सेट कर दिया कि 10 क्वेरीज के बाद या तो 50 क्वेरीज के बाद क्या होगा, लॉग्स क्रिएट किया जाएगा। ओके यस कहाँ पे थे हम लोग, यस yes, and log files then are updated with the new steps of transaction till the next
checkpoints and so on. Okay, here care should be taken to create a checkpoints, because if any checkpoints are created before any transaction is complete fully and the data is updated database, it will not meet the purpose of the lock parent checkpoints. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10-10 का ग्रुप बनाया, 10-10 के बाद आप checkpoints create करें तो आपको 10-10 का ही checkpoints every time you have to create. Okay, if checkpoints are created and when each transaction is complete, all where the database is at the consistent state, and that will be useful. Okay, examples हम लोग देखते हैं, then you will get the idea. Example देखते, चलो. Suppose there are 4 concurrent transactions है, T1, T2, T3 and T4. Okay, there are 4 concurrent transaction है. What is the concurrent मतलब क्या? Simultaneously हो रहा है. T1, T2, T3 and T4. A checkpoint is added to at the middle of T1. Okay, हमने checkpoint add किया, कहाँ पे add किया? Middle of the transaction T1. For example, transaction T1 में 4 queries है, ठीक है, उसके middle में हमने checkpoints add किया. And there is a failure while executing the T4. Okay, and there is a failure while executing the T4. जब हम transaction T4 में हमने perform कर रहा है तो failure generate हो रहा है. Let's see how a recover system recovers the database from this failure. क्या होगा? समझो क्या किया हम लोगों ने. फॉर एग्जांपल देयर आर 4 ट्रांजैक्शन है, T1, T2, T3 एंड T4. हमने चेक पॉइंट सेट किया इन द मिडल ऑफ T1. हमने चेक पॉइंट कहां पे सेट करके रखा है? T1 के मिडल में हमने वी हैव सेट द चेक पॉइंट्स, या तो वी हैव क्रिएट द चेक पॉइंट्स एट द मिडल ऑफ द T1. एंड ट्रांजैक्शन T1 परफॉर्म हुआ, T2 परफॉर्म हुआ, T3 परफॉर्म हुआ एंड T4 जब हम लोग परफॉर्म करें देयर इज सम फेलियर, कुछ फेलियर हो गया. ओके, देयर इज अ फेलियर, ट्रांजैक्शन T4 अकर हो रहा है तो कुछ फेलियर जनरेट हुआ, तो उसको हम लोग कैसे रिकवर करेंगे? हाउ द डेटाबेस विल बी रिकवर? सो दिस आर द स्टेप्स. क्या होगा? इट स्टार्ट द रीडिंग द लॉग फाइल्स फ्रॉम द एंड